Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In this video, we are going to learn about future perfect tense. आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि future perfect tense की formation and उसका usage कैसे होता है. So let's start our today's topic. हम examples से समझने की कोशिश करते हैं कि future perfect tense की formation कैसे होती है और किस context में use होता है. So the first sentence is I will have finished my work by tomorrow. I will have finished my work by tomorrow. Now you see, we start with the subject. हम subject use करते हैं. Then we use the helping verb of future perfect tense, and the helping verb is will have. Shall have भी use होता है, but मैंने आपको पहले बताया हुआ है in future simple tense कि जो will है it has almost replaced shall. तो हम with every noun and pronoun we keep using will. हम will use कर रहे होते हैं. So likewise future perfect tense में भी हम क्या use करेंगे? Will have. I will have. And then we use past participle. Past participle is basically the third form of the verb. Verb की third form को हम past participle भी कहते हैं. So we start with the subject, then we use the helping verb of future perfect tense, and the helping verb is will have. Okay, and then we use हम क्या use करते हैं? Then third form of the verb की third form. Okay, so the sentence is I will have finished my work by tomorrow. एंड इसका मतलब उर्दू में क्या है कि कल तक मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, या सिंपली यू कैन से कि कल तक मैं अपना काम खत्म कर लूँगा. कल तक मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा या कल तक मैं अपना काम खत्म कर लूँगा. सो दिस इज हाउ वी फॉर्म future perfect tenses. We use future perfect tense to talk about something that will be ended, completed, or achieved by a particular point of time in the future. हम किस एक्शन के बारे में बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में? हम उन एक्शंस के बारे में या ऐसी चीज के बारे में जो खत्म हो जाएगी या हम क्या कर लेते हैं उसको अचीव कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट में इन द फ्यूचर. फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मीन्स कोई टाइम में. जैसे फॉर एग्जांपल कल तक मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा. सो दिस इज बेसिकली अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है फ्यूचर का, तो इस पॉइंट तक मैं अपना काम खत्म कर लूंगा. इफ यू ट्रांसफॉर्म इट इनटू नेगेटिव, अगर इसको हम नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये कैसे बनता है? They will not have moved to their new house by next month. Again, we start with the subject and then we use will have. Will have हम use करते हैं, but अगर जो सेंटेंस है दैट इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट जो है नॉट वो हम यूज करते हैं बिटवीन विल एंड हैव. विल एंड हैव के बीच में हम क्या देंगे? नॉट देंगे. सो द सेंटेंस बिकम्स दे विल नॉट हैव. दे विल नॉट हैव. या अगर कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? दे वोंट हैव. They won't have moved to their new house by next month. Again, this is a particular specific point in the future. ये एक specific point है in the future. Future में ये एक क्या है? Time है, particular time है. यहाँ तक ये काम हो चुका होगा. तो it means कि this is the negative sentence. तो इसका मतलब क्या होगा उर्दू में? They will not have moved. वो move नहीं हुए होंगे कब? To their new house, अपने नए घर में कब? By next month, अगले महीने तक. अगले महीने तक वो अपने घर जो है नए घर में मुंतकिल नहीं हुए होंगे. तो आप क्या यूज करेंगे? यू विल बी यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस. लाइकवाइज अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हो इसको इनटू इंटरोगेटिव में, इफ योर सेंटेंस इज इंटरोगेटिव तो फिर वो कैसे बनेगा? क्या विल हैव दे होगा या विल दे हैव? सो कैसे होगी इसका फॉर्मेशन? Will you have graduated from university by June? Now you see, आप क्या रखते हो? Will पहले रखते हो, subject से पहले will, then the subject, and then you will be using have. तो it means कि will and have के दरमियान आप क्या रखोगे? आप subject को रखोगे between will and have if your sentence is interrogative. So the sentence is will you have graduated from university by June? क्या आप जून तक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेंगे?
या आप जून तक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। ओके, सो अगेन दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फ्यूचर, ये भी क्या एक स्पेसिफिक पॉइंट है इन द फ्यूचर, तब तक ये काम हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Likewise, we have another sentence. We will have saved enough money to start our business by the end of the year. We will have saved enough money. हमने इतने पैसे सेव कर लिए होंगे, किस लिए, टू स्टार्ट अवर बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कब तक, बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर तक, मीन साल के आखिर तक हम इतनी रकम जमा कर चुके होंगे कि हम अपना नया क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो आई विल बी यूजिंग future perfect tense. We have another sentence as well, and the sentence is the film will already have started. फिल्म जो है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी होगी by the time we get to the cinema, हमारे सिनेमा पहुंचने तक, हमारे सिनेमा पहुंचने तक जो फिल्म है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। तो हम क्या यूज करेंगे, अगेन वी विल बी यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट मींस के किसी फ्यूचर के पर्टिकुलर पॉइंट में आप कोई काम कर चुके होंगे या कोई चीज अचीव कर चुके होंगे या कोई चीज खत्म हो चुकी होगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, के फ्यूचर परफेक्ट में ये काम, ये फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। ओके, likewise we have another sentence के next year. Now again this is a particular point in the future. Next year they will have been married for 25 years. They will have been married for 25 years. अगले साल तक उनकी शादी को 25 साल पूरे हो जाएंगे, या उनकी शादी को 25 साल जो है मुकम्मल हो चुके होंगे। कब तक, नेक्स्ट ईयर तक। इट मीन्स के अभी अगर हम अभी की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल, they have been married for 25 years. They have been married for 25 years मीन्स उनकी शादी को 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है, और अभी तक चल रहा है। एंड व्हेन यू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो मतलब अभी जो है उनको 24 हुए हैं और अगले साल तक उनको कितने जो है टाइम पीरियड हो चुका होगा, उनकी शादी को 25 साल मुकम्मल हो चुके होंगे, पर कब तक, नेक्स्ट ईयर तक। And the last sentence is, by the time you get home, I will have cleaned the house. By the time you get home, I will have cleaned the house. आपके घर पहुंचने तक मैं घर साफ कर चुका हूँगा। So I will be using future perfect tense. I hope कि आपको समझ आ गया होगा। If you have any confusion or question, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.